ڈسکس کیا تھا کہ کیٹیگری میں جب ہم پکچرز پیچھے سے ہم نے ڈال دی تھی اس کو فرنٹ پہ لا کر ہم نے شو کیسے کرنا ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور وہ میں ابھی دوبارہ آپ کے سامنے کرتی ہوں، اور زہرا جو ہے وہ اس کو ریپیٹ کریں گی میرے ساتھ. ٹھیک ہے زہرا؟ جی ٹھیک ہے. ہم فرنٹ پیج پہ آئے، ہم فرنٹ پیج پر آتے ہیں. فرنٹ پیج پہ آنے کے بعد ہم نے جو پیچھے خوشبخت آپ نے اپنی ویب سائٹ میں کیٹیگریز بنائی تھی؟ جی میم. ہاں پیچھے پکچرز ڈالی تھی آپ نے کیٹیگریز میں؟ جی میم ڈالی تھی میں نے، پورٹ فولیو ہاں کی ڈالی تھی میں نے. ہاں ڈالی نہیں ہے ابھی، یہ آپ کے پورٹ فولیو کی پکچرز یہاں پر شو نہیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے ٹھیک ہے. پیج بنایا ہوا ہے، کیٹیگری نہیں شو ہو رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے، ابھی یہ کیسے جی شو ہوگی وہ ہم کریں گے. جی سارا پروسیجر زہرا اور شاہد آپ دونوں ریوائز کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہم نے سب سے پہلے شاہد آپ بتائیے کہ ہمیں کیٹیگری کروانے کے لیے فرنٹ اینڈ پہ آ کے کس جگہ پہ جانا ہے؟ جی میم کیٹیگری کو لانے کے لیے آپ وہ پاؤڈر والی کیٹیگری میں جائیں گے. کہاں ڈیش سے بورڈ جائیں گے؟ پاؤڈر کے نیچے جو کیٹیگری ہے نا، پاؤڈر کے اندر جو کیٹیگری ہے وہاں پہ جائیں گے. نہیں وہ اس کے بنا بعد لی ہم نے، اپیرنس کیٹیگری کے بنا مینیو میں لی جائیں ہے گے. اور پروڈکٹ ایڈ اس کے کر بعد دی. اپیرنس کے مینیو میں جائیں گے. اپیرنس کے مینیو میں جائیں گے، وہ بھی ہم کر لیا. تو اس کے بعد پروڈکٹ ہو گئی. جو ہم نے پروڈکٹ کیٹیگری بنائی تھی پیچھے سب کچھ سیٹ کر دیا تھا، وہ فرنٹ پہ شو نہیں ہو رہی، کیسے شو ہوں گی؟ وہ آپ پیجز میں جا کے اس کو ایڈ کریں گے. نہیں، یہاں سے تو پیج ہی ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے اتنا اچھا کام کر کے مجھے دکھایا اور شاید آپ مجھے ریپلائی سے کیوں نہیں کر مجھے نا آپ کوشچن کی میم یہی آواز کٹ رہی تھی. رہے؟ جی کسٹمائز زہرا آپ پہ بتائیں. جائیں گے، ہاں جی کسٹمائز پہ جائیں گے پہلے. ہاں جی، ہم فرنٹ اینڈ پہ آ کر کسٹمائز کریں گے. ہم یہاں یار سے کچھ آواز ایسا وقت ہے. کسٹمائز کریں گے. جی کسٹمائز کریں گے ہم فرنٹ اینڈ پہ آ کے. فرنٹ اینڈ پہ آ کے جی اب بتائیں شاہد آگے ہم کہاں جائیں گے؟ شاید کسٹمائز کے بعد ہم کہاں جائیں گے جب ہم اس کو اوپن کریں گے؟ تو زہرا آپ بتائیں، شاید ان کو میری آواز صحیح طرح سمجھ میں نہیں آ رہی. مینیو پہ آپ جائیں گے، پورا پروسیجر. مینیو ہاں پہ جی، ون بائی ون. مینیو پہ جائیں ہم آ گے. گئے. جی آ گئے. ٹھیک ہے، کریٹ. ہم پہلے اس کو مینیو اوپن کریں ون گے. ہاں اوپن پہلے کریں ہم گے. اس کو اوپن کریں گے. جی پھر اوپن نیچے کرنے آئیں کے گے، بعد ایڈ ایڈ آئٹم پہ جائیں گے، آئٹم. نیچے ہاں پروڈکٹ پہ جائیں گے. پروڈکٹ پہ جائیں گے. کس پہ جائیں گے؟ کس پہ جائیں گے؟ کیٹیگریز میں جائیں گے. کیٹیگریز تو یہ رہی، اور کہاں جا سکتے ہیں؟ پروڈکٹ اوپر پروڈکٹ پہ جائیں گے جہاں تصویریں ہوں اوپر گی. کے کہاں؟ نیچے جو یہ پروڈکٹ لکھا ہوا ہے لسٹنگ کے نیچے، اس سے اوپر کیٹیگری سے اوپر جو پیج ہے. اس پہ جائیں جی گے. ادھر. شاہد آپ بتائیے کہاں جائیں گے؟ شاہد ہم کہاں جائیں گے؟ اوپر کلک کریں گے، جو پلس کے نشان ہے نا ان کو ٹک مارک کریں گے. نہیں آپ غلط بتا رہی ہیں زہرا، آپ غلط بتا رہی ہیں. آپ تھوڑا سا سوچیں، ہم نے پیچھے کیا چیز بنائی تھی، ہم اسی والے ٹیب پہ جائیں گے. ہم نے پیچھے کیا کریٹ کیا تھا اسی ٹیب پہ جائیں گے. خوشبخت آپ بتائیں پروڈکٹ ہم کیا چیز شو کر. جی ہم نے پروڈکٹ کیٹیگری بنائی تھی پیچھے، ہم تو جی اس پہ جائیں گے. میری اسکرین ٹھیک ہے، شو اب ہو اس رہی پہ ہے نا؟ ٹک کریں گے. جی اب اس پہ ٹک کریں گے. 1 2 3 and 4. خوش وقت نے 4 کیٹیگریز بنائی ہیں. خوش وقت ٹھیک ہے ایسا ہی ہے نا؟ جی میم. 4 کیٹیگریز آپ نے بنائی تھی. یہ دیکھیں جب ہم نے ان کو ٹک کیا تو یہ ادھر آپ کا آلریڈی جو مینیو بنا ہوا تھا اس مینیو کے ساتھ یہ چاروں ایڈ ہو گئی ہیں آگے. ٹھیک ہے، رائٹ. اب ہم کیا کریں گے آگے زہرا؟ ایڈ آئٹم کر دیں گے، اس کو پبلش کر دیں گے. جی پبلش. آئٹم تو ایڈ کر دیے ہم نے، اب ہم نے اس ٹھیک کو ہے پبلش کر کر دیں دینا ہے. پبلش کر دینا ہے. ٹھیک ہے، پبلش کرنے کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے؟
इनके फ्रंट एंड को चेक करना है, ठीक है, जी इनके रिफ्रेश फ्रंट एंड को चेक करके करना है। जी, अब हम जब इनकी इस पे जाते हैं, ये देखिए सना, जो हमने 4 कैटेगरीज आपने बनाई हुई थी, प्रोडक्ट में बनाई थी, ये तो गैलरी में तो बनाई थी, पोर्टफोलियो में तो आपने बनाई थी ना 3, ये पेजेस थे, ठीक है, ये पेजेस थे आपके। और ये जो ये 1 2 3 4 आपने और बनाई हैं, ये वो थी जो आपने कैटेगरी में पीछे बनाई, ठीक है जी। तो अब ये तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा है ज़हरा, ये मेन्यू तो बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, अब हम इसे जी सेटल कैसे करें? मैम पीछे डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे, अपीयरेंस में जाके मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में जाएंगे, फिर वहां से जाके इधर जो ये राइट साइड पे बार है उसमें हाँ उसके अंदर उसके अंदर सेट करेंगे इसको, राइट पे कर देंगे इनको। जी। देखिए सना, सॉरी खुशबक, जो हमने प्रोडक्ट पीछे हमने ऐड की थी वो यहाँ भी शो होना शुरू हो गई है, सब मेन्यू में डाल देंगे ये इसको। हाँ, और किसके नीचे डालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, कहाँ डालेंगे? एक और पोर्टफोलियो पेज बनाएंगे, एक पेज बना लेंगे। जी, क्या कह रही हैं आप खुशबक? मैं जो ऊपर ऑलरेडी जो पोर्टफोलियो मैंने बनाया हुआ है उसी की आइकन्स पे चले जाएंगे ना, पेस्ट कर देंगे। ये पोर्टफोलियो हमने जब बनाया था ना, तो इसको इस तरह का एक और पेज बना देंगे, ठीक है, पेज या फिर क्रिएट कर लेंगे। हाँ, इसी तरह का हम एक और पेज क्रिएट कर लेंगे। ये तो आपने पेजेस के लिए बनाया हुआ है ना, लेकिन हम जी कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, पेज में जाके हम ऐड कैटेगरी पे करेंगे। हम क्या करेंगे कि जैसे आपने पेज पोर्टफोलियो के लिए ये बनाया था पेजेस के लिए, ऐसे ही एक पेज हम और भी क्रिएट कर लेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ वक्त अब आप बताइए। मैम आपकी आवाज चली गई है। नहीं, मुझे जी तो आ रही है। मुझे बताइए, खुशबक बताइए कि पेज क्रिएट, नया पेज क्रिएट करना है पोर्टफोलियो के नाम से, तो क्या करेंगे? मैं ऐड न्यू में जाएंगे। जी, ऐड न्यू में आ गए हम। ऐड न्यू में आने के बाद मैं वहाँ पे हम यहाँ पे ऐड टाइटल में लिखेंगे और पब्लिश कर देंगे। हाँ, यहाँ पर हम लिखेंगे पोर्टफोलियो 2 कर देंगे, इसको पोर्टफोलियो 2 के नाम से कर देंगे, ठीक है, और इसको हम पब्लिश कर देंगे। अब हम क्या करेंगे बताइए, आगे हम क्या करेंगे, इसको मेन्यू में कैसे लाएंगे? मैम जहरा बताइए, फिर अब हमने क्या करना है? पेरेंट्स में जाएंगे दोबारा, मेन्यू हाँ जी, मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में आ गए। फिर मेन्यू वहां में से आने टिक के बाद करेंगे, इसको पोर्टफोलियो को टिक करेंगे, पोर्टफोलियो 2 को पोर्टफोलियो, टिक ये जो करके हमने, हाँ जी, जी ऐड ऐड मेन्यू मेन्यू ऐड कर टू देंगे। मेन्यू, ऐड मेन्यू कर दिया हमने। जब ये इसको ऐड मेन्यू किया, तो हमने उठा के सबसे पहले इसको ऊपर रख लेंगे। इसको ऊपर ले जाए, ताकि वो जो हमने पेजेस का बनाया था उसी के साथ ये भी आ जाए, जी अब उसको सब मेन्यू में ठीक है। डाल देंगे इनको अब हम चारों को। अब हम इनकी जो चारों कैटेगरीज हैं, इन चारों को हम, मैं कल भी इसको ले जाना चाह रही थी इकट्ठा उठा के, लेकिन नहीं जा रहा था, इकट्ठा उठाने का शिफ्ट के सिस्टम होता है साथ, कोई? हाँ, कंट्रोल शिफ्ट के के साथ साथ होता है शायद, नहीं जाएगा। एक एक करके उठा के रख दें फिर। मैम बल्क सेलेक्ट करें, नीचे बल्क सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं आपने किया हुआ। एक सेकंड, दूसरा उठा के देखते हैं। नहीं, ऐसे भी नहीं जाएगा, वो तो हमें डिलीट या वो करना हो ना सिलेक्ट, तो तब मेरे ख्याल में जाएगा, लेकिन इसको वो करने के लिए, मूव करने के लिए हमें वैसे ही करना पड़ेगा। इसको उठा के ऊपर रख दें। ये होता है, इकट्ठा भी मूव होता है, मैंने जी इसको किया था पहले भी, लेकिन मुझे भी वो भूल गया कि कैसे किया था मैंने, मुझे नहीं याद, लेकिन ये होता है। कंट्रोल ऑल्ट के साथ भी नहीं हो रहा। तजर्बे करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है पोर्टफोलियो 2 अभी के रख नीचे देते हैं जी।
मतलब कि मैम आप जो ये बता रही हैं, जो लास्ट टाइम पे आपने जो बताया था कि आप मेन्यू में जाके काम करें तो वो पेजेस क्रिएट करें, और एक आपने बताया कि कैटेगरी, ये दो वेज आपने बताए कि हम किस तरह से कैटेगरीज को क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो दो तरीके बस, ठीक है। तो अभी जो आप मुझे कैटेगरी का बता रही हैं, फिर उसके बाद हम मेन्यू को कैसे फ्रंट पे ला सकते हैं अगर हम कैटेगरी वाइज शाहिद ने बड़ा अच्छा काम किया है आज, शाहिद ने बड़ा अच्छा काम किया है कि दोनों चीजों को सामने रख दिया है, पेजेस कैटेगरी को भी और प्रोडक्ट कैटेगरी को भी, दोनों को सामने रख दिया है। अभी मैं खुशबख्त का भी ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक है। अब हम इसको सेव मेन्यू कर देंगे। अब हमने इसको जब सेव मेन्यू कर दिया तो अब हम इनकी फ्रंट वेब पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे और खुशबख्त प्रोसीजर समझ में आया आपको? ये आपकी वो कैटेगरीज हैं जो आपने पीछे जाके हम सबसे पहले क्रिएट की थी, और ये वो कैटेगरीज हैं जो आपने पेजेस की सूरत में क्रिएट की थी, ठीक है। इसमें आपने तस्वीरें डाल दी हैं, जबकि इस पेजेस वाले में अभी तस्वीरें डालना बाकी हैं। ये आपने कहाँ डालनी है? सिर्फ गैलरी में तस्वीरें डाली हुई हैं आपने, ओरिजिनली नहीं, आपने गलत जगह पे तस्वीरें डाली हुई हैं, गैलरी में डाल दी हैं और उसको सिंगल पिक्चर में, फीचर पिक्चर में नहीं डाला आपने, आपने गलत जगह पे तस्वीर डाल दी है, ठीक है। यही तस्वीरें डाली थी ना आपने? जी मैम, इसके सब पिक्चर्स भी मैंने डाली हैं और मेरे पास खुल रही थी सारी। नहीं, ये आपने ना प्रोडक्ट गैलरी में डाल दी है, प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट में नहीं डाली आप, नहीं फिर यहाँ पीछे वो सारा कुछ आता है उसमें। ये देखिए मैं आपको शायद की वेबसाइट दिखाती हूँ। मैम ये आप प्रोडक्ट में जाएं, जो ऑल प्रोडक्ट है, हाँ हाँ, वहां से आप जरा दोबारा करें, क्योंकि जब मैंने ओपन किया था तो पूरा ओवरऑल आ रहा था। कौन सी ऑल प्रोडक्ट? यहाँ कहाँ है नहीं, ऑल प्रोडक्ट? वो पोर्टफोलियो में जाएं और ये दोबारा करें, इसको क्लिक, गैलरी को क्लिक कर दें। ये पेजेस है ना, इसमें तो तस्वीर आ ही नहीं सकती, इसमें तो पिक्चर आ ही नहीं सकती ना, ये तो गैलरी है, ओ सॉरी पेजेस है, इनमें तो हमने पिक्चर डाली नहीं है। ये है वो जो हमने पीछे पिक्चर्स जहाँ डाली हैं उसमें है जी, जो पिक्चर्स हैं वो यही हैं। राइट मैम, ऊपर की कैटेगरीज को चेक करें जरा। ये जी करें। ये यहाँ आ गई है ना, गैलरी रिस्पॉन्सिव इमेजेस, ये मैं आपको पीछे दिखाती हूँ कि आपने कहाँ पिक्चर्स डाली। अच्छा ये देखिए ना, आपका एक इशू था पुष्पा, आपका होम पेज गायब हो गया था। जी मैम, ये कैसे आया दोबारा? मैं बताती हूँ आपको। मैंने मुझसे गलती से जो है ना, जब मैंने वो कॉमर्स इंस्टॉल किया था, वहाँ पे जैक पैक के नाम से समथिंग ऐसे एक और आया था, उसको मैंने क्लिक किया था, वो बैकअप परफॉर्म करता है। उसने बैकअप में मेरा क्या किया कि वो स्क्रीन को उसने बैकअप पे ले लिया, उस पर मुझे टाइमिंग बता दिए कि 37 या 24 आवर्स के बाद आपका जो है ना बैकअप वापस आ जाएगा। अच्छा, मैंने उसको रीड नहीं किया था, तो फिर मैंने उसको डिलीट किया है, और कल लाजमी सी बात है, मैंने कल लैपटॉप का वर्क नहीं कर सकी थी, जब मैं आज ओपन किया तो मेरे स्क्रीन पे दोबारा ये आया हुआ था। ये ऐसी कोई कहानी नहीं हुई, ये मैं लेकर आई हूँ आपकी बताओ, ये देख ले, मैंने खैर वो डिलीट कर दिया था। ऐसी कोई कहानी नहीं हुई, कहानी सिर्फ ये हुई थी कि आपने इसको पेजेस में जाकर ट्रैश में डाल दिया था। ट्रैश में डाल दिया था? जी, और इसको मैं ट्रैश से दोबारा उठा के वापस लाई हूँ, और इसको मैंने फिर दोबारा से लिंक दे के दोबारा से इसको यहाँ पे डाला है। जी, ये मैंने किया है। मैं देखना चाह रही थी कि आप क्या कहानी सुनाती है। मैम मेरा नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब था, डिलीट किया तो शायद इस वजह से हो गया। जी जी जी, क्या कह रहे हैं आप शायद? मेरा नेट अभी थोड़ा सा गैप हो गया था, तो पिछले 5 मिनट से मुझे काट के आवाज आ रही थी, मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, तो आप वो जो कस्टमाइज से आपने बात स्टार्ट की थी ना, जी, तो वो कस्टमाइज कैसे किया था मुझे बताइए सिर्फ वो। जी मैं बताती हूँ दोबारा, आपसे मैं रिवीजन करवाना चाह रही थी, वो मैं आपसे
पूछ रही थी कि आप मुझे बताएं कि कस्टमाइज में कुछ वक्त की पेजेस एंड वो कैटेगरी प्रोडक्ट को फ्रंट पे शो करना चाह रही थी, तो मैं आपसे कह रही थी कि आप उसको रिवाइज करें। प्रोसीजर को भी जहरा ने कर दिया, ठीक है? जी जी। बस मुझे यही अस्सलाम पूछना वालेकुम मैम। है। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं मुझे अभी 5 मिनट लेट आई हूँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा बीच में से, और दूसरा ये आप पोर्टफोलियो 2 और पोर्टफोलियो के बीच में फर्क क्या बता रही हैं, ये भी समझ नहीं आ रहा है। ये देखें, ये वो यही काम पेजेस ना है। आप मेरी वेब के ऊपर करके दिखा दें थोड़ा सा, इनको भी, मुझे भी रिपीट हो जाएगा, इनको क्लियर हो जाएगा। आपने कर लिया हुआ है, आपने ऑलरेडी, मैंने तो आपको देख के किया है। मुझे तो आपका काम इतना अच्छा लगा है कि आपको देखकर मैंने ये काम किया है कि मैंने कैटेगरी को भी मैं यहाँ ले आई हूँ और पेजेस को भी यहाँ ले आई हूँ। जो दोपहर आपने मुझे काम दिखाया था तो वो इतना परफेक्ट काम हो गया था कि यानी मुझे अब दोनों चीजों को यहाँ पे एक साथ दिखाकर बताना बहुत आसान हो गया है, लेकिन वरना मेरी एक एक चीज को कैटेगरी क्या, बताना हाँ जी, वो मेरी कैटेगरी के अंदर की ये चीज शो नहीं हो रही, मेरे पेजेस शो हो रहे हैं, ड्रॉप डाउन में पेजेस शो हो रहे हैं, लेकिन जो मैंने ऑल कैटेगरी बनाई ना उसके अंदर मैं उसको क्लिक करूंगा ना तो फिर वो नीचे लेफ्ट पे शो होगा सभी कुछ, लेकिन उसके ऊपर शो नहीं हो रहा, फुटर के अंदर शो नहीं हो रहा वो। क्या ऑल कैटेगरीज में क्या? हाँ अच्छा, जी आपने इसको फिर सिंगल कर दिया है? आपने नहीं, फिर इसको सिंगल कर दिया? आपने डबल पेजेस बनाए थे ना, कैटेगरी के भी अलग बनाए थे हाँ जी, और लेकिन उसके भी अलग। अब ये पेजेस साइड पे आए हैं, सॉरी कैटेगरी साइड पे आई है, लेफ्ट पे, हाँ, ये तो साइड पे तो आएंगी। लेकिन ये ऊपर नहीं ना मुझसे आ रही, मैंने ऊपर तो बनाई नहीं अभी तक, मैंने ऊपर सिर्फ हाँ, पेजेस वो और आपने दोपहर जो आपने काम किया हुआ था वो डिलीट कर दिया आपने। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट आपको बताया था कि मैंने कैटेगरीज और पेजेस मैंने अलग किए हैं, ये कैटेगरीज के जो हाँ, ड्रॉप डाउन है ना वो मुझसे बना नहीं है। दोपहर तो बने हुए थे। नहीं, फिर आपने पेजेस देखे थे ये ऑल प्रोडक्ट आ गई हैं, ठीक है। जी, ऑल प्रोडक्ट आ गई, अच्छा, लेकिन मैं अब दोबारा करती हूँ, मैं आपके इसके ऊपर दोबारा करती हूँ ताकि सना को भी समझ में आए, ठीक है। जी ठीक है। सना के, और एक्चुअली सना के प्रोडक्ट बहुत अच्छे बने हुए थे। मैंने सना की वेबसाइट में एक काम, ये मैं फ्रंट पे ये लेकर आई थी, कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। सना के पेजेस भी बने हुए थे शायद। सना, आपने पेजेस भी बनाए थे कुछ? जी बनाया था, पार्टी कुछ करके था ना, पार्टी सप्लाईज ऑल प्रोडक्ट्स में। मैं हाँ, आपने डिलीट कर दिया था आई थिंक कल मैम। हाँ, मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, जो आपने प्रोडक्ट कैटेगरी बनाई है ना, मैम मेरी मैं ठीक कोई बनी हुई ऐसी है। वेबसाइट, हाँ, आप बिल्कुल ठीक बनी हुई है। आपने ना यहाँ पर ओपन करें। ये पेजेस शो, आपने यहाँ पर सिंगल सिंगल प्रोडक्ट डाली हुई है कैटेगरी में, ठीक। वो मैंने और डालनी थी, लेकिन मैंने सिर्फ एक इसलिए डाली है, एक तो मेरे पास थोड़ा सा नेट का मसला था, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बिजी थी, मैंने कहा एक का आइडिया हो जाएगा, बाकी मैं उसको भी सबको ऐसा कर लूंगी। ठीक है, ठीक। गैलरी शो होनी चाहिए और गैलरी टाइप में शो होना चाहिए, जैसे ये हो रही है, ठीक है, जैसे ये हो रही है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऑल कैटेगरी, ठीक ठीक है। है। जी, तो सना, आप मुझे सबसे पहले, ये कल आप थी ना हमारे जी साथ, मैम। सना, खुशबा और आप चारों, पहले सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, बाद में हम पेजेस का काम करेंगे ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो। मुझे पहले ये बताएं कि जो हमने सबसे पहले मेन्यू में कैटेगरी क्रिएट की थी और कैटेगरी में पिक्चर्स डाली थी, ये आप चारों को अच्छे से समझ में आ गया है कि वो फ्रंट पे शो कैसे होती हैं? जी मैम। मैम सना, वो आपको? आगे, लेकिन मुझे जरा शो कर दें जी जी। ये फ्रंट पे खुशबख्त, कैसे आपको? लगा। मैम आधा समझ में आ गया है, आधा आप जो बताएं कि उसमें मैं स्टक हो गई कि मेरी एक ही पिक्चर शो क्यों हो रही है, जबकि मैं जब काम करी थी मेरे पास सारी वीडियो आई, जैसे हाँ। जहरा ने अभी काम दिखाया ना, ऐसे मेरा आ रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस तरह से क्या हुआ। हम आपकी पहले तो जाकर पीछे से पिक्चर्स देखते हैं हमने डाली किस जगह पे हुई है, ठीक है। फिर उसके जी बाद हम आपका काम आगे करते हैं। हम डैशबोर्ड में चलते हैं। एक चीज पहले सबको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि कैटेगरी जो हमने पीछे बनाई थी वो फ्रंट पे शो कैसे होती है। ये चीज, एक स्टेप जिस पे मैं चल रही हूँ, जिस रूटीन पे, वो यही था। वो समझ में पहले आ गया है ना सबको कि नहीं आ गया? जी बस वन बाय वन, जी। अगर किसी को शाहिद को कंफ्यूजन है तो मैं उसको दोबारा भी शाहिद की वेबसाइट में करूंगी। प्रोडक्ट चेक करते हैं आपकी, ये आपकी है ना वेबसाइट? जी मैम।
आपने पिक्चर्स डाली किस जगह हुई हैं, पहले मुझे वो देखने दें आप। मैम ऑल प्रोडक्ट में जाएं, ऑल प्रोडक्ट नजर आ जाएगा। यहाँ शो नहीं हो रही पिक्चर, मुझे ये समझ में नहीं आया, ऑल प्रोडक्ट के अंदर शो हो रही है। यहाँ तो होंगी भी नहीं, यहाँ नहीं होंगी शो, मैं तो सिर्फ कैटेगरी चेक कर रही थी कि कितनी बनी हुई है, यहाँ नहीं शो होती, यहाँ तो सिर्फ नाम बनते हैं। ओके अच्छा ये एक एक आपने प्रोडक्ट डाली हुई है। नहीं मैम, मैंने ऐड गैलरी भी की हुई है, मैं ये बताना चाह रही हूँ। देखती हूँ। मैम इस वाले में नहीं, नीचे वाले में जाए, पोर्टफोलियो में, इसमें तो मैंने एक ही डाली थी, यहाँ बल्कि डाली नहीं है 3-4, सॉरी। प्रोडक्ट गैलरी, अच्छा गैलरी है और साथ प्रोडक्ट इमेज है, ठीक है। ये हम किस में देख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज में, ठीक है। अच्छा एक ही प्रोडक्ट डली है आपके, जो है वो साइड बार नहीं आ रहे, आपका साइड बार नहीं आ रहा, जैसे शाहिद के साइड बार आ रहा है ना, ये वाला आपका इस तरह का साइड बार नहीं आ रहा, ये आपका डिफॉल्टेड पैटर्न है। आपने जो चूज किया है ना, वो आपने जो लेआउट चूज किया है उसका डिफॉल्टेड पैटर्न ऐसा है, यानी उसका साइड बार जो है वो इस तरफ है और ये सिर्फ इस पैटर्न में है, और आपकी 3 तस्वीरें मेरा भी यही वाला है ना जी, मैम मेरा भी यही वाला है, मे भी हो सकता है मेरा भी इसलिए नहीं हाँ आ रहा। आपका भी यही वाला है, आपका भी यही वाला है, लेकिन पोर्टफोलियो गैलरी में जाइए, उसमें जरा देखिएगा कि मैंने ऐसे में पहले जब किया ना तो सारे आ रहे थे, मैं ये बताना चाह रही हूँ, पूरा साइड बार भी आ रहा था। ये वाले यहाँ पे वेब आ रहा था, डेवलपमेंट को छोड़ दें, वेब डेवलपमेंट को छोड़ दें, पोर्टफोलियो गैलरी में जाके प्लीज चेक करिए, जो आइकन है ना पोर्टफोलियो गैलरी कैटेगरी, पोर्टफोलियो ये वाला। अच्छा कुछ सेटिंग आउट की है मेरे ख्याल में, शायद आपने पहले साइड बार आ रहा था। हेलो मैम 3-4 मैंने डाली हुई है तीनों आइकन्स के अंदर, ये जो मेरे कैटेगरी बनी हुई है, प्रोटेक्ट गैलरी, प्रोटेक्ट अच्छा सिंगल, पोर्टफोलियो सिंगल, पोर्टफोलियो क्रिएटिव। गैलरी में एक पिक्चर है, गैलरी में एक इमेज है, और सिंगल प्रोडक्ट तो एक ये वाला है कि इसके अंदर काफी सारी पिक्चर्स हैं, जी एक ही पिक्चर है, मतलब एक ही पिक्चर के अंदर काफी सारी पिक्चर है ना, ये जी दोनों चीजें हैं। तो फिर गैलरी में तो कोई वो नहीं है ना, काफी सारी पिक्चर्स तो है ही नहीं, एक ही पिक्चर है। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने पोर्टफोलियो सिंगल, या आप जो इसको छोड़ दें क्योंकि मैंने इसमें तो डाली नहीं है, लेकिन ये भी सामने शो हो रही थी, डिफॉल्ट सॉर्टिंग के अंदर भी सामने शो हो रही थी, नीचे की तरफ पूरा आ रहा था और डिटेलिंग के साथ आ रहा था जो मैंने लिखा है। पोर्टफोलियो गैलरी होम, मैंने पोर्टफोलियो 2 में जाएं दोबारा, जी क्रिएटिव में चली जाए या सिंगल में चली जाए। ये तो ओपन ही नहीं हो रहा, हैंग हो गया। अच्छा जब मेरे पास शो हो रहा था वो मैम, वो जहाँ पे डिसॉर्टिंग आपका लिखा हुआ है ना, इससे पहले सारी यहाँ पे डिटेल्स ऐसा था हाँ, इस तरह से पिक्चर्स आ रही थी नीचे की तरफ, उसी पिक्चर के नीचे पिक्चर्स आ रही थी, और मेरी डिटेल और एड कार्ड जो है ना वो राइट साइड पे आ रहा था। अब हम इसको जब क्लिक करेंगे तो गैलरी में आपने जो चीजें डाली होंगी वो नीचे आएंगी, जी मैम ऐसे क्लिक करने पे जी उधर नहीं आएंगी, ठीक है। सही। लेकिन इस तरह नहीं है आपका, ये वाला पैटर्न नहीं है आपका, ये पैटर्न नहीं है जो इनका पैटर्न है, इनका टेम्पलेट अलग होगा इसलिए, जो हाँ टेम्पलेट अलग है, उनका टेम्पलेट और है, आपका और है। अब आप ये ठीक देखिए ना, जो आपने गैलरी में 2 पिक्चर्स डाली थी, जब आप इस क्लिक करेंगी तो इसमें आपने जो एक ही पिक्चर डाली है, गैलरी में तो एक ही शो होगी,
मैम इन्होंने अपना साइड बार का जो लेआउट है ना वो भी ऑफ किया होगा। हाँ देखते हैं, वो मैन कस्टमाइजेशन में इसमें आपने एक पिक्चर डाली है और एक वही है जो आपकी उधर आ रही है। एक ये वाली पिक्चर आपने डाली है, ये वाली गैलरी वाली, और एक वो है जो आपने गैलरी में डाली है। जी मैम। ये वो वाली 2 पिक्चर्स हैं। अच्छा हम जी। इनका देखते हैं कस्टमाइजेशन में साइड बार देखते हैं इन्होंने ओपन किया है या बंद किया हुआ है। ये अच्छा ये इनकी है। साइड बार लेआउट, नहीं शायद ये जो है ना इनका लेआउट डिफरेंट है। जहरा का भी यही वाला लेआउट है, ये देखें इनकी भी सिंगल पिक्चर आ रही है और उसके नीचे वैसे ही गैलरी आ रही है। आपका और तरह आ रहा है। देखिए इन्होंने कितनी सारी तस्वीरें डाली हुई है, सब 1 बाय 1 करके आएंगी। जी इनका पैटर्न और है, आपका पैटर्न और है। ठीक है, जी ठीक है। ये और है वो और है। वैसे हम वैसा अपने खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ये वाला खुद से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये साइड बार सिस्टम ना अब मैंने जितनी भी वेबसाइट देखी है ना, अब साइड बार सिस्टम आउट है। अब मोस्टली मैंने किसी वेबसाइट में ये साइड बार सिस्टम नहीं देखा अभी, अब तक जितनी भी मैंने बनाई है और देखी है, जितनी भी सैंपल वेब्स देखी हैं उनमें भी। ये सिर्फ वो कॉमर्स ई कॉमर्स की जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है बस उनमें ये साइड बार आ रहा हाँ है, जैसे उनमें तनाज़ आ में आ रहा है। जाता है, सिलेक्शन जी के लिए आ जाता है, कभी उनमें भी कम ही है। आप देखें बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज की वेबसाइट है उनमें भी कम ही वेबसाइट बार साइड बार नजर आ रहा है। ठीक है, यस। अच्छा शायद अब आप ना मुझे कस्टमाइजेशन का पैटर्न दोबारा समझाएं, आप अपनी ही वेबसाइट में समझाएं और ये अब सब लोग दोबारा गौर से देखें ताकि कस्टमाइजेशन अच्छे से आपको कस्टमाइजेशन में ये सिंगल टैब जो ये वाला है, जिस तरह से हमने जो प्रोडक्ट क्रिएट की थी, कैटेगरीज क्रिएट की थी, वो हमारी उस वक्त शो नहीं हो रही थी, अब वो शो करवानी है। तो किस तरह से शो करवानी है शाहिद आपकी, मैं देख लूं पहले कैटेगरीज कौन सी हैं, उसके बाद हम करते हैं। ठीक है, जी ठीक है। प्रोडक्ट में हम गए, कैटेगरीज में हमने देखा, कैटेगरी में देखने के बाद यहाँ पे आपने 1 2 3 हाँ वो भी बता दूं मैं आपको, ये पेरेंट कैटेगरी जो आपने बनाई हुई है, जी पेरेंट मैनेजमेंट। कल मैंने आपको बताया था, कल रात को ही लैपटॉप बंद करते ही मुझे समझ में आ गया था इशू क्या हुआ है, वो पेरेंट कैटेगरी क्यों नहीं हुआ। सॉरी, वो जो मैंने कस्टमाइजेशन ऑन किया हुआ था उसको रिफ्रेश करना था और वो आ जाना था, नहीं इतनी वो सी बात मैंने थी वो। जी वो मैंने रिफ्रेश करके देखा लेकिन फिर भी वो नीचे नहीं आ रहा वो। नहीं उनका आ चुका था, उनकी सना की वेबसाइट में। सना कल वो पेरेंट कैटेगरी नहीं बन रही थी ना? जी मैम। वो सिर्फ रिफ्रेश करना था कस्टमाइजेशन को, बस फिर वो आ गया मैम था। अभी आप कह रही थी कि ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे पिक्चर्स नहीं आती हैं, लेकिन शाहिद की वेबसाइट पे पिक्चर्स आ रही हैं कैटेगरीज के अंदर और मेरे में नहीं आ नहीं रही। मैंने इनका तो नहीं कहा कि आपकी बाय डिफॉल्ट नहीं आ रही, यहाँ तो आप डालेंगी तो आएंगी। ये तो सना ने भी डाली है, मैंने आपको बताया यही था कि यहाँ पिक्चर डालना अच्छी बात है, और ये क्यों अच्छी बात है ये मैं आपको जब एलिमेंट्री पे काम करेंगे तब आपको बताऊंगी कि ये पिक्चर्स कहाँ काम आती हैं। ये डाल लेना अच्छा होता है, पिक्चर्स को ना भी डालें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप डाल लेंगे तो आगे एक एलिमेंट इस तरह फ्रंट एंड पे बनेगा जहां हमें ये पिक्चर्स काम आएंगी। तो मैम ये पिक्चर्स कैसे आएंगी? बाय डिफॉल्ट तो आएंगी नहीं, तो अब नहीं ये देखिए ना, ये रहा अपलोड इमेज, यहाँ ओके पे ओके थंबनेल आपने यहाँ कैटेगरी का नाम लिखा और यहाँ पे इधर आके थंबनेल बना दिया इसका, यहाँ डन जो भी पिक्चर डाल लें आप। डन ठीक है, मैंने इसको तो नहीं कहा था कि बाय डिफॉल्ट, ये बात नहीं मैंने कही थी, मैं उस फ्रंट लेआउट की बात कर रही थी। राइट। अच्छा जी, शाहिद ने ये कैटेगरीज बनाई हुई है, शाहिद ने ऑल कैटेगरीज, उसके बाद 3 जो है वो पेरेंट कैटेगरी, ये जो डिलीट होम कैटेगरी डिलीट कर दो, शायद ये इसका कोई काम नहीं है। जी इसको डिलीट कर दें आप तो, हाँ जी कर वो दो। मैं बाद में मैनेज कर दूंगा। मैम शाहिद के पेज पे रहते हुए ये पेरेंट और चाइल्ड का भी बता दीजिए, इनकी पेरेंट कोई बना
हाँ, इसको हम एडिट करते हैं दोबारा, एयरपोर्ट कैटेगरी है ये, एयरपोर्ट कैटेगरी को हम एडिट करते हैं। एयरपोर्ट कैटेगरी, और ये उसका नाम यही है ऑल कैटेगरी। इन्होंने इसकी असल जो पेरेंट कैटेगरी बनाई है ना, जिसके इस ये वाला एक चाइल्ड कैटेगरी है एयरपोर्ट कैटेगरी, लेकिन वो किसका हिस्सा है? ऑल कैटेगरी का हिस्सा है, ऑल कैटेगरी का हिस्सा है। इसीलिए उसका जो पेरेंट कैटेगरी है ना, जो उसका पेरेंट बनाया है, यानी एक ये पेरेंट था ऑल कैटेगरी, उसका एक हिस्सा ऑल एयरपोर्ट कैटेगरी बना, एक हिस्सा। तो पेरेंट के नाम पे जिस, मसलन मैंने आपका बनाया था बेबी प्रोडक्ट, आपका दिखाती हूँ, कल हम उस पे काम कर रहे थे, मैं उसी पे दिखाती हूँ आपको। बल्कि ये देखे ना, ये देखे, मैंने आपका रिफ्रेश किया था तो वो तो वहां पे मौजूद था, ये देखें। मैं अभी आपको वहीं पे एक और भी क्रिएट करके दिखा दूँ। ये देखें, ये हमने बनाया था ना बेबी प्रोडक्ट, और आपने बनाया था, मैंने नहीं, आपने बेबी प्रोडक्ट बताया, बनाया था पेरेंट कैटेगरी। मैंने उस पेरेंट कैटेगरी की एक और चाइल्ड कैटेगरी बनाई थी जिसका नाम रखा था बेबी लोशन। बेबी प्रोडक्ट पेरेंट कैटेगरी है, यानी एक मेन कैटेगरी है। मेन के आगे हम सब कैटेगरी बना रहे हैं, जिसे हम चाइल्ड कैटेगरी भी कहेंगे। तो ये पेरेंट कैटेगरी हुई, ये चाइल्ड कैटेगरी हुई। जब चाइल्ड कैटेगरी क्रिएट की तो ये एरो क्रिएट हो गया, ठीक है। इसमें ये बेबी लोशन आ गया। जब हम बेबी लोशन को क्लिक करेंगे तो इसमें हम जितनी मर्जी पिक्चर्स डालते जाएं, ये देखें, ठीक ठीक। ये हम जितनी मर्जी पिक्चर डालते हैं। और इसी तरह से हम उसको ऑल प्रोडक्ट, बेबी प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे तो हमें ये दोनों आ जाएंगी पिक्चर्स, जो हमने, आपने एक ही पिक्चर डाली थी बेबी प्रोडक्ट में, एक ही पिक्चर डाली थी ये वाली, ठीक है। और अब ये 2 आ बस एक सेकंड, अब दो, एक सेकंड प्लीज होल्ड कीजिएगा। जी हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। ठीक है। ये अब आपको कैटेगरी, पेरेंट कैटेगरी और चाइल्ड कैटेगरी समझ में आ गई ना? और ये बनी कैसे थी? बनी कैसे थी, अभी मैं एक और आपकी उसमें बनाकर दिखाती हूँ। अब हम डैशबोर्ड में आए, डैशबोर्ड में आने के बाद ये आपकी है ना सना वेब, हम डैशबोर्ड में आए, यहाँ पे आके हमने प्रोडक्ट में, सॉरी, आए, यहाँ पे हम कैटेगरी में आए। अभी हम उसी बेबी प्रोडक्ट की एक और चाइल्ड कैटेगरी हम क्रिएट करने लगे हैं। सना अब आप ही रिवाइज कीजिए कि हमने पेरेंट कैटेगरी क्रिएट करनी है, जी, तो आप हम कैसे बेबी करेंगे? शैम्पू कर दीजिए, बेबी शैम्पू। ठीक है,
अब आगे आगे भी स्लग भी स्लग सेम में भी जी सेम होगा। आगे अच्छा, पेरेंट कैटेगरी में आप बेबी प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। ठीक, आगे हम और यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर देंगे और उसके बाद ऐड न्यू कर। अब हम क्या करेंगे, देखिए पेरेंट कैटेगरी में और चाइल्ड कैटेगरी में डिफरेंस बताइए। आप नहीं खुशबख्त बताएंगी। खुशबख्त बेबी पेरेंट कैटेगरी और चाइल्ड कैटेगरी में डिफरेंस क्या है? मैम पेरेंट्स कैटेगरी जो आपकी मेन प्रोडक्ट की कैटेगरी है, जिसके अंदर सब चाइल्ड्स आ रहे हैं, राइट, यही है। और देखने में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? देखने में मैम ऑल एसेंशियल रिलेटेड टू द बेबी, जिसपे जो बेबी प्रोडक्ट है उस पे उन्होंने बता दिया है कि एसेंशियल रिलेटेड प्रोडक्ट है। नो आइडिया। नहीं, ये देखिए, ये डैश के साथ आता है। ओके, ये छोटे से डैश के साथ आ रहा है, ये इस विदाउट डैश है एंड ये डैश के साथ है। ठीक है ओके, मतलब जी। इसका चाइल्ड है, राइट। हाँ, अब हम इसके अंदर देखें, ये जो हमने बेबी शैम्पू किया है इसके अंदर कोई पिक्चर नहीं है। अब हम क्या करेंगे सना? हम अपलोड पिक्चर करेंगे, इस एडिट करके इस पे पिक्चर डालेंगे। जी, कहाँ डालेंगे? किधर डालेंगे? बेबी शैम्पू की कैटेगरी नीचे आएंगी, वहाँ जहाँ पे वो आपने दिखाया था। नहीं नहीं, अभी हमें ये इसमें पिक्चर कोई भी नहीं है। ये यहाँ पे नंबर शो करने के लिए, पिक्चर डालने के लिए पिक्चर किधर डाली जाएगी? मैं इसकी बात एडिट नहीं कर करिए, रही। एडिट करिए बेबी शैम्पू, हाँ एडिट। इंतजार फरमाइए, तवील इंतजार। नहीं, ये मैंने आपको बताए बगैर इसीलिए खामोशी से इंतजार किया है कि आपको पता चल जाए कि वहां से एडिट करेंगे तो होगा क्या। वरना मुझे पता था कि आप गलत टैब खुलवा रही हैं। आपको अब याद रहेगा कि पिक्चर डालने के लिए इधर से नहीं जाया जाता। अब किधर से जाएंगे बताएं? नीचे ये आ वाली पिक्चर तो, ये जी पिक्चर नहीं डालनी, ये नहीं डालनी, हमने वो अंदर नहीं डालनी, हमने ये वाली पिक्चर डालनी है, इधर लेकर आनी है। मैम ये कहाँ तो से फिर लाएंगे? प्रोडक्ट ऐड करना हमने। एक एक मिनट, हाँ जी आप बताइए सना, ये इस जगह लानी है, कहाँ से लाए हम? बेबी शैम्पू डाला था, बनाया था, हमें इसको हमें इसको इधर लेकर आना है, इस जगह लेकर आना है। कहाँ, कैसे लाना है? अपीयरेंस नहीं जी, जहरा आप बताएं, जहरा आप बताएं। शाहिद आप बताएं। मैं वो इधर जो से आपने बताया जाएंगे। ना कि वो जो हमारा पेरेंट जो चाइल्ड कैटेगरी बनी है उसका काउंट 0 है। इट्स मीन कि उसकी प्रोडक्ट 0 है, हमें जी प्रोडक्ट है ही ऐड नहीं करनी ना, पड़ेगी। कहाँ से करेंगे? वो प्रोडक्ट वही में तो पूछ जाके रही हूँ। ऑल प्रोडक्ट में जाके न्यू ऐड न्यू करना पड़ेगा। जी सिंपल सी तो बात थी सना, आपको आता था ये, बस आप कंफ्यूज हो रही थी। आपको आता था ये, ठीक है। यहाँ पे हमने आके बेबी शैम्पू लिखा, ठीक है, और फिर हमने आके इसकी यहाँ पे कोई भी कॉस्ट डाल दी, और फिर यहाँ पे आकर हमने इसका सेट प्रोडक्ट कर दिया, सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट ऐड कर दिया। सना समझ में आया ना? जी जी समझ आ गया। आता था ना आपको ये? जी जी आता था ना? जी आता था। इसको हमने सेट प्रोडक्ट किया, और फिर हमने यहाँ से क्या चूज करना है? इधर से बेबी शैम्पू सेलेक्ट करना है। बेबी शैम्पू। ये सेलेक्ट करना है। अब आगे
पब्लिश आप कर दो। पब्लिश कर दे, डिस्क्रिप्शन अगर डालेंगे वो डाल के तो। जो भी चीजें डालनी है, ये तो हम अभी सिर्फ डेमो कर रहे हैं ना। अभी ये कंप्लीट होता है, हम फ्रंट पे जाकर इसकी चेंजिंग देखते हैं क्या हुई। जी, ये यहाँ पे हम ओपन करके इसमें क्या हो गया इसको, इसमें अभी बेबी शैम्पू की जो कैटेगरी वो अभी हमने ऐड ही नहीं की। हाँ हमने मेन्यू में ऐड नहीं की अभी जाके। वेरी गुड, यहाँ हम मेन्यू में आएंगे। मेन्यू में आने के बाद मेन्यू में आने के बाद हम बेबी शैम्पू सर्च करेंगे, कहाँ है। कहीं नजर आ रहा है, कहीं नजर नहीं आ रहा हो तो वो कैटेगरी में देखे ना, इसको नीचे कर, ऐड मेनू के नीचे जो एक सेकंड। और मेरा मसला भी बिल्कुल सेम यही है कि जो मैंने कैटेगरी अपनी बनाई है ना वो यहाँ पे नजर नहीं हमें कल भी यही हुआ था, कल भी यही हुआ था। हमने फिर पेज फ्रेश किया था, वेबसाइट दोबारा अपलोड की थी तो क्लियर हो गया था। कल भी यही मसला हुआ था। वेबसाइट अपलोड करनी पड़ेगी, रीलोड करनी पड़ेगी। बेबी शैम्पू अभी यहाँ पे सब क्लियर है, यहाँ पे आ गया है, फ्रंट पे नहीं आ रहा। मैम यही काम ना आप मेरी वेबसाइट के ऊपर करें। जी मैं कर, प्रोडक्ट भी ऐड हो गई है, ठीक है। अभी इसे फ्रंट पे आ जाना चाहिए, लेकिन शायद ये अब अपलोड करना पड़ेगा या थोड़ी देर बाद आएगा, ऐसा कुछ होगा। यहीं पे मैम आना चाहिए कस्टमाइज नहीं इसको। करना होगा, कस्टमाइज करके तो नहीं लाना होगा। कस्टमाइज में भी चेक कर लेते हैं, लेकिन कस्टमाइज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये वैसे ही शो हो जाना चाहिए यहाँ पे। वहां से भी चेक कर लेते हैं। क्योंकि मैम आप कह रहे थे ना, जब भी हम कैटेगरी बैक साइड पे बनाते हैं तो हमें फ्रंट लाइन पे लाने के लिए कस्टमाइज करना पड़ता है। नहीं, वो जब हम जो चीजें डालते, एक दफा जब हम आगे ले आते हैं ना, तो वो फ्रंट पे ऑटोमेटिकली चीजें आती जाती हैं। लेकिन वो इस वक्त शायद कोई और इशू हो रहा है, और अगर अल्लाह करे इधर से आ जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रोडक्ट कैटेगरी, वेरी गुड।
इट मीन्स कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. अब मैं आपसे सीखना शुरू करूंगी, अब ये होगा. कहाँ गई? अब अल्लाह करे कि ये अब आ जाए. चलिए और ही खोल देते हैं. अच्छा, मेरे जहन में वो बात रह गई कि पिक्चर जैसे ऑटोमेटिकली आती रहती है, कैटेगरी भी वैसे आ जानी चाहिए ऑटोमेटिकली, और मैं ये बिल्कुल मुझे जहन से निकल गया कि आपको नहीं हुआ. दोबारा करते हैं. अब आए. अब आ बेबी प्रोडक्ट. एक्सीलेंट. ये सना बोली थी या खुशबख्त बोली थी? कौन बोली थी ये? जहरा, आई किसने? थिंक जहरा. जहरा बोली थी. जहरा आपने बताया था? किसने बताया था? किसने क्या चीज? कस्टमाइजेशन के लिए? किसने मैम बोला मैंने था बताया, कस्टमाइजेशन? सना ने मैंने बताया था. मैंने खुशबक खुशबक. माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन, जबरदस्त. मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो बात मैं कल से अब तक खुद दोहराई जा रही हूँ वो मैं खुद भूल गई, और जिसको बता रही हूँ उसको याद. मुझे बहुत खुशी हुई है, थैंक यू. यकीन करें, बहुत खुशी हुई है. और ये देखें कि इतनी सी बात थी, और ये आपको कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह. और किसी को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन आपको नहीं भूलेगा इंशाल्लाह. इट मीन्स कि थैंक यू. ये वाला सेक्शन बड़े अच्छे से आपके माइंड में फिक्स हो गया है. यस मैम, थैंक यू. ठीक है. ये लें. अच्छा मैम, एक बात अल्हम्दुलिल्लाह. बताइए, जब हम कैटेगरी, जैसे हमारे पास मेन्यू था, वैसे मैं प्रोडक्ट कैटेगरी की कैटेगरी बना रही थी, स्टेशनरी प्रोडक्ट, पार्टी प्रोडक्ट्स, तो जब तो हमने कस्टमाइज नहीं किया था इस तरह के. नहीं, वो आप पेजेस बना रही थी. ये जो ड्रॉप डाउन में आ रहा है ये पेजेस नहीं मैम, शुरू में सबसे पहले आपको याद है आपने कैटेगरीज बनाना जो सिखाई थी, आपने बोला था कि आप लोग कैटेगरीज बनाएं और एक एक पेज. हाँ हाँ, वो हम कैटेगरी बना रहे थे ना, प्रोडक्ट कैटेगरी. उस वक्त तो हमने चाइल्ड कैटेगरी तो बनाई ही नहीं थी ना. तो चाइल्ड कैटेगरी के लिए हमें यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे आना पड़ेगा. हाँ, ये कस्टमाइजेशन पे मेरा ख्याल था कि वो ऑटोमेटिकली फ्रंट पे शो हो जाएगा, लेकिन उसको हमें उसके लिए भी कस्टमाइजेशन में आना पड़ा, क्योंकि वो मेन्यू था, वो प्रोडक्ट नहीं था. मेन्यू था, वो मेन्यू के लिए हमें कस्टमाइजेशन में ही आना पड़ेगा. ठीक है. मेन्यू के लिए आना ही पड़ेगा कस्टमाइजेशन. ठीक है. अब हम डिफरेंस देखते हैं पेजेस और मेन्यू का. अभी इसी को हम फिर से रिवाइज करें एक दफा. अब शाहिद के साथ कर रहे हैं. ठीक है. शाहिद अब आपके साथ रिवाइज कर रहे हैं. अब मैं सबकी, बाकी सबकी बंद कर रही हूँ. ठीक है. सना को और खुशबक को और जहरा को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से समझ में आ गया है, और अब हम सिर्फ शाहिद के इस पर काम करेंगे. जी शाहिद, आपकी मैं डुप्लीकेट कर देती हूँ 3 चीजें, क्योंकि अभी हम एलिमेंटर पे काम नहीं कर रहे, इसलिए अभी हम 4 की जरूरत नहीं है. जब हम एलिमेंटर पे भी काम करेंगे तो फिर हमें 4 टैब्स की जरूरत होगी. ठीक है. 10:30 भी हो गए हैं, तो वैसे टाइम भी खत्म हो गया होगा रिकॉर्डिंग का. फिर रिकॉर्डिंग बंद भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम फिर से ही रिवाइज ही कर रहे हैं. हमने नया काम आज कोई भी नहीं किया. जैसा कि हमने कल कहा था कि आज हम नया काम नहीं करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह. फ्राइडे से, सॉरी, मंडे से हम लोग फिर एलिमेंटर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एलिमेंटर का बहुत लंबा काम है और पूरे महीने का काम है, और पूरे महीने में ना सिर्फ एलिमेंटर बनाना है बल्कि उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं. इस वजह से इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हमें पीछे, या सॉरी,
सॉरी अभी तो कस्टमाइजेशन में हेडर एंड फुटर भी रहता है, एलिमेंटर नहीं करेंगे अभी। हेडर एंड फुटर मंडे से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। वो करने के बाद उसके लिए हमें 3 क्लासेस चाहिए होंगी, उसके बाद फिर हम एलिमेंटर पे आएंगे, ठीक है जी। शाहिद अब आप अपने रिवीजन करें, बाकी लोग अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं क्योंकि क्लास का टाइम एंड हो गया है। और शाहिद आप एक दफा रिवाइज कर लें मेरे साथ, अच्छा है कि बाकी सब जी भी रिवाइज करें। वैसे मैंने वो कर दिया है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। एक दफा सबके लिए भी रिवीजन हो जाएगी, आपके लिए भी हो जाएगी। दोनों चीजें बताइएगा, वो भी बताइएगा, कैटेगरी भी बताइएगा और पेजेस भी बताइएगा, ठीक है। जी ठीक पेजेस है में क्यों मैम। प्रोडक्ट नहीं आई और कैटेगरी में प्रोडक्ट क्यों आ गई, ये बताइएगा। यही तो क्वेश्चन मेरा कि पेजेस में क्यों नहीं आई और कैटेगरी में मेरा ड्रॉप डाउन क्यों नहीं आया। तो कैटेगरी के अंदर मैंने ड्रॉप डाउन ऐड कर दिया अभी। तो मैंने कैटेगरी कैसे बनाई थी, वो मैंने प्रोडक्ट के अंदर जाके जहाँ से प्रोडक्ट ऐड करते हैं उधर से कैटेगरी मैंने बनाई थी। ये आपने यहाँ से कैटेगरी बना दी, ठीक है। जी यहाँ से मैंने कैटेगरी बना दी। सबसे पहला स्टेप ये हो गया, आपने 4 जी कैटेगरीज बना दी, ठीक है। जी हम इनकी पेरेंट कैटेगरी खत्म कर दें, पेरेंट नहीं वाला सिस्टम खत्म कर दें इसका। नहीं नहीं, ये मैंने बड़ी मुश्किल से किया। मुश्किल से मैं किया वो अभी तो मैंने इस पॉइंट पे पहुंचा हूँ कि मैंने उसको जो लेके आना था ना, अगर आप अभी मेरे वेबसाइट को विजिट करें ना, साइट व्यू करें, जी। तो अभी आपको वो नजर आएगा जो मैं करना चाह रहा था। ये अ, ये जी हाँ ये वाला ये काम, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। यही जी जी काम मैं करना ये चाह रहा हुई पेरेंट कैटेगरी, चाइल्ड कैटेगरी ये बन गई, ठीक है। था। जी अच्छा, और अब ये यहाँ पर शो हो रही है, जी ये हो रही है अभी जैसा कि आपने शो अब करवाई पिक्चर ना। शो हो रही है। जी वेरी गुड। अभी हम बाकी भी देख लेते हैं, अगर ये आपको अच्छी से बिल्कुल हो गई माशाल्लाह, जो जो आपने पिक्चर्स डाली थी वो सब शो हो गई, ठीक है। जी और पेरेंट कैटेगरी भी देखते हैं, सॉरी चाइल्ड कैटेगरी ये भी शो होगी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अभी ये चीज अलग थी, ये जो ऑल कैटेगरी थी, अभी हमने काम ही इतना किया है, अभी हमने सीखा ही इतना है। अभी ये जो पेजेस हमने बनाए थे ना, इन पेजेस के अंदर पिक्चर्स शो नहीं हो रही, वो होंगी एलिमेंटर से। जब हम एलिमेंटर सीखेंगे हम इसके जरिए भी कैटेगरी बना सकते हैं, इसके जरिए भी कैटेगरी बना सकते हैं। ऑल पेजेस भी आपने जब क्रिएट किए थे, मेन्यू में जाके आपने पेजेस को भी ड्रॉप डाउन कर दिया, और कैटेगरीज तो ऑलरेडी हमने बनाई हुई थी, तो वो वहां से मेन्यू से जाके ड्रॉप डाउन हो गई। इनको तो हमने कस्टमाइजेशन में लाकर फ्रंट पे शो कर दिया, लेकिन जो ऑल पेजेस हैं इनको हमने शो करना है एलिमेंटर के जरिए। जैसे जैसे हम इसके ऊपर, अभी हम क्या करेंगे देखिए, मैं आपको इसको समझा देती हूँ। ये हमने सबसे पहले खोला पेज 1, जी पेज 1 ओपन किया, और इसको हम करेंगे आपका यहाँ एलिमेंटर नहीं आ रहा, यहाँ एलिमेंटर नहीं आ रहा। अब हम एलिमेंटर पे कैसे काम करेंगे इसके ऊपर, अब ऐसे करेंगे कि हम डैशबोर्ड में जाएंगे, हम डैशबोर्ड में आएंगे, डैशबोर्ड में आने के बाद पेज पे आएंगे, ऑल पेजेस करेंगे, कौन सा था पेज 1, ठीक है, पेज 1 की कैटेगरी थी। हम आएंगे पेज 1 पे, इसको करेंगे एडिट, जी इसको एडिट करेंगे, और एडिट विद एलिमेंटर। जी वहां से एलिमेंटर शो नहीं हो रहा था, तो हम पीछे आ गए, पेज में आ गए, ठीक है। हम पेज में आ गए, और पेज में आने के बाद अभी हम इस पे प्रोडक्ट शो करेंगे। यहाँ से भी कैटेगरी बनेगी और वहां से भी बनेगी। ये आपका एलिमेंटर साइड बार है, जिधर से आपने टूल्स हैं आपके पास, जिधर से आपने काम कर, कितनी शो करवाना चाहते हैं, 6 करवाना चाहते हैं, 5 करवाना चाहते हैं, 4 करवाना चाहते हैं, या ये 5 करवाना नजर आ रही चाहते है हैं। यहाँ पे तकरीबन 2 आनी चाहिए। इनमें से कौन सा लेआउट लेना चाहते हैं आप, ठीक है। 4 वाला कर इसमें दें। से आप, अभी फिलहाल हम 2 वाला करते हैं ना। हम इस पे प्लस पे ठीक है क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम इधर आके हम इनर सेक्शन लेंगे। इनर सेक्शन, ये 2 पार्ट आ गए, एक को हम करेंगे सिंगल वाला लेकर, पहले इसको आकर फुल विड्थ करेंगे,
फिर सिंगल वाले को लेकर इसके अंदर इमेज डालेंगे, इमेज डालेंगे, इमेज डालने के बाद यहाँ से इमेज चूज करेंगे और यहाँ से हम आपकी ये प्रोडक्ट देते हैं, इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इमेज ऐड करने के बाद, प्रोडक्ट ऐड करने के बाद इसको स्टाइल करेंगे, एडवांस करेंगे, इसके कलर्स चेंज करेंगे, इसके साइड्स कॉर्नर गोल करेंगे, इसके साइज ठीक करेंगे, यहाँ से ढेरों काम होगा। यहाँ से इसको हम फिर अपडेट कर देंगे। इसी तरह से इसके साथ एक और बनेगा, उसके नीचे एक और बनेगा। अगर 6 वाला लेते हैं तो 6 वाला बन जाएगा, 8 वाला लेना चाहते हैं 8 वाला बन जाएगा, ये लेना चाहते हैं ये लेना चाहते हैं, कोई भी स्टाइल लेना चाहते हैं। या फिर इसके अलावा भी अगर आप इसमें कोई हेडिंग डालना चाहते हैं, इसके अलावा इसमें आप गैलरी डालना चाहते हैं या स्लाइडर डालना चाहते हैं या इमेज कैरोसेल डालना चाहते हैं, फ्लिप बॉक्स डालना चाहते हैं, मीडिया कैरोसेल डालना चाहते हैं और या फिर फॉर्म डालना चाहते हैं, कुछ भी आप इन तस्वीरों में डालना चाहते हैं, ये पेज 1 क्रिएट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से आके इसको करने के बाद अपडेट कर देंगे। इसको हमने किया कुछ भी नहीं है, अभी कोई चेंजिंग इसके अंदर हमने नहीं की। और जब हम ये पेज 1 पे आएंगे, पेज 1 पे आने के बाद जब हमने इसको एलिमेंटर से एडिट करना है तो पेज 1 को ही पहले खोलेंगे। इस तरह से हमें प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएंगी। बस समझ में आई जी आपको? ठीक है मैम, समझ आ गया। इसके ऊपर ये काम करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। ये इजी है ना मैम? इंशाल्लाह ये इजी भी है, मजेदार भी है ज्यादा, लेकिन पता है क्या, इसमें देर बहुत लगती है। इसमें देर बहुत देर लगती है। इसमें एक एक आपको एलिमेंट को डिजाइन करना पड़ता है, एक एक एलिमेंट को डिजाइन करना पड़ता है। और आप जितना जैसे मर्जी, अच्छे आपके पास टाइम है तो करते रहें, खेलते रहें बैठे हुए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपने एक ही दफा पीछे से सारा कुछ प्रोडक्ट ऐड करने के बाद, कैटेगरी ऐड करने के बाद कर देंगे, फ्रंट पे आके देखेंगे तो आपका सब कुछ हुआ होगा, वहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। राइट, ये जो हमने काम किया है ना, इसमें हमें फ्रंट पे कुछ आके करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मैं तो यही काम करती हूँ, क्योंकि जब मेरे पास काम आता है तो फिर उसमें मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं बैठ के इसको डिजाइन करती रहूं एक एक चीज को, ठीक है। फिर कस्टमर की डिमांड होती है तो मैं इसको डिजाइन करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती। अच्छा मैम, कैटेगरी के ऊपर जो आप कैटेगरी वाइज अगर हम काम करते हैं तो उसमें स्लाइड शो नहीं हो सकती? इसमें होता है, कैटेगरी में डिजाइनिंग होती है, लेकिन उसका टफ है तरीका, काफी ज्यादा, काफी लंबा प्रोसीजर है। इसको हम बाद में कभी अगर जरूरत पड़ी करने की, अव्वल तो मैं उस पर इतना टाइम ही नहीं स्पेंड करती, उस पर मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की कभी भी। एक दो दफा 2-3 ट्यूटोरियल देखे हैं कि इसको मैंने कैसे चेंज करना है, लेकिन मैंने उनके ऊपर वर्कआउट नहीं किया, ना मैंने प्रैक्टिस की है उसकी, क्योंकि मैंने जैसे आपकी साइट के ऊपर, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, जैसे आपकी साइट पे स्लाइड्स आ रही है ना, मुख्तलिफ जो आपका ई कॉमर्स की वेबसाइट है उस पे स्लाइड्स आ रही है, तो वो आपने कैटेगरीज कैसे, मतलब कैटेगरीज से काम किया है या पेज वाइज आपने काम किया? इस वाली में या किस में? 2-3-4 मैंने आपको दिखाई थी ना, शायद इसी वाली में मैम। मैंने आपको 2 सैंपल दिखाए थे, एक पेजेस वाला दिखाया था, एक कैटेगरी वाला दिखाया था। वो जो आपकी साइकिल वाली वेबसाइट नहीं है, स्पोर्ट्स ये साइकिल कैटेगरी, पीछे? अच्छा वो वाली। वो भी दिखाती हूँ, ये भी दिखाती हूँ, कैटेगरी और ये भी दिखाती हूँ मैं आपको। जो मैंने पेजेस क्रिएट किए वो भी दिखाती हूँ, जो कैटेगरी क्रिएट की है वो भी दिखाती हूँ आपको, दोनों का डिफरेंस दिखाती हूँ अभी। अब तो आपको दोनों का तरीका पता चल गया ना, तो अब आपको समझ में आ जाएगी कि वो कैटेगरी क्या है। ये मैंने पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, ये मैंने पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। ये पेजेस के जरिए मैंने कैटेगरी शो की हुई है। मैम आपको क्योंकि मुझे इसके अंदर मुझे, क्योंकि ये चीजें, हाँ मैम आइडिया बताइए, आइडिया कैसे पता चला कि पेजेस के थ्रू है? मैं बताती हूँ। ये देखें, ये कैटेगरी है, ये देखें कैटेगरी में जो है साइड ना, बार आएगा, साइड बार आता है और ये 3 सेक्शंस आते हैं, 3 सेक्शन।
یہ ویسے اس کی بھی سلیکشن ہوتی ہے کہ 3 لینے ہیں, 4 لینے ہیں, 5 لینے ہیں, اس کی سلیکشن بھی ہوتی ہے, لیکن وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم آگے سے اس کے مزید پیجز کریٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں سائڈ بار بھی نظر آ رہی ہے, 3 کا سیکشن نظر آ رہا ہے, اور مجھے پتا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے کام کیا ہوا ہے اس لیے مجھے تو پتا ہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں نا, یہ میں نے آپ کو ابھی وہ کھول کر دکھایا تھا, میں نے آپ کو یہ پیج کھول کر دکھایا تھا, یہ کھول کر دکھایا تھا. جب ہم ایلیمنٹر سے کام کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بار شو کرتا ہے کہ کتنے آپ نے لینے ہیں. اس بار کے ذریعے آپ 6, 7, 8 جتنے مرضی لے لیں. ٹھیک ہے, وہ یہ بہت خوبصورت سٹائل بنتے ہیں, لیکن یہ میں نے جب کام کیا تھا نا, میں آؤٹ آف اسٹیشن تھی, ہل اسٹیشن پہ گئی ہوئی تھی, وہاں مجھے ریویژن آ گئی تھی کسٹمر کی کہ آپ مجھے, میں نے اس کی نا یہ بنایا ہوا تھا, میں نے اس کی کیٹیگری شو کی ہوئی تھی. اس کیٹیگری میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کیٹیگری اوپن کرتے ہیں نا, یہ موبائل پہ صرف ایک وقت میں یہ ایک ہی چیز شو ہوگی. جب ہم اس کو اسکرول کرتے جائیں گے تو ایک وقت میں یہ ایک پروڈکٹ شو ہوگی, جبکہ اس میں یہ ہے کہ ایک وقت میں یہ 2 پروڈکٹ شو ہوں گی. تو کسٹمر نے ڈیمانڈ کی کہ مجھے ایک وقت میں 2 پروڈکٹ چاہیے. تو مجھے بجائے اس کی کہ میں اس میں آ کے وہ اتنا لمبا لینتھی پروسیجر کرتی, میں نے اس کو سب کو کٹ کیا. کٹ کرنے کے بعد میں نے پھر اس کا پیجز کریٹ کیا, اور پیجز کریٹ کرنے کے بعد میں نے یہ والا سیکشن 4 والا لیا, اور میں نے اس کو سیٹ کر دیا. سیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کا موبائل کھولتے ہیں تو موبائل میں ایٹ اے ٹائم 2 پروڈکٹ شو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت خوبصورت ڈیزائننگ ہو سکتی ہے. اس کو ہم ہوور افیکٹ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر بلیک کر سکتے ہیں, اس کا یہ فونٹ اس کے اوپر ہی لا سکتے ہیں, اس کے کارنرز گول کر دیں تو, اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ لگا دیں تو بہت خوبصورت چیز بن سکتی ہے. ٹائم ہونا چاہیے آپ کے پاس, اور اتنا پیسہ بھی دے کوئی ہمیں اتنی محنت کرنے کا. ٹھیک ہے, اس نے مجھے پیسے کم دیے تھے, اس نے مجھ سے کام سب سے زیادہ کروایا تھا, تو اسی لیے میں نے اس کا کام دل سے کوئی نہیں کیا تھا. کیٹیگری کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو کیٹیگری کے اندر جب ہم کوئی کسی چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں تو نیا پیج اوپن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس. ہاں, نیکسٹ پیج میں نیا پیج نیکسٹ پیج میں آتا ہے. ایک سیکنڈ پلیز اور کیجیے گا. جی جی ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا سب کچھ. جی میم. یہ سب چیزیں ہم کیٹیگری میں شو کرا سکتے ہیں. یہ بھی, یہ کیروسل میں, یہ دیکھیں یہ کیروسل جو ہے یہ امیج کیروسل ہے, یہ بھی ہم کیٹیگری میں شو کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہی کیٹیگری جو آج میں نے شاید کو دن میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو کیٹیگری ہم نے اوپر بنائی تھی, جو پروڈکٹ ہم نے پیچھے ڈالی ہے نا, یہ ہیں وہ پروڈکٹ. ادھر صرف ہمیں ایک چھوٹا سا کوڈ ڈالنا پڑتا ہے, تو یہ ساری کی ساری جو پیچھے پروڈکٹ آپ نے ایڈ کیے نا, یہ پکچرز اٹھ کے سامنے آ جاتی ہیں. ایک چھوٹا سا کوڈ ڈالنا پڑتا ہے بس. یہ وہ ہے, اور یہ گیلری تو ویسے ہی شو کی ہے. یہ ایکسیسریز, یہ کیٹیگری ہے میری, یہ کیٹیگری ہے, اس کے لیے الگ کوڈ ڈالنا پڑتا ہے. اور یہ آپ کی جو ٹوٹل پروڈکٹ ہے اس کے لیے ایک الگ کوڈ ڈالنا پڑتا ہے. ادھر تو میں نے کوئی کام نہیں کیا, بس صرف ایک کوڈ ادھر ڈالا ہے, ادھر بیک گراؤنڈ پہ پکچرز ڈالی ہیں, فونٹ ڈالا ہے, اور گیلری سلیکٹ کی ہے, گیلری بنائی ہے. اس میں مجھے بہت ٹائم لگا تھا, اس کو بنانے میں بہت ٹائم لگا تھا. یہ ادھر بھی لا کے ایک کوڈ ڈالا ہے بس. یہ تو میں نے پکچرز خود سے ایڈ ہی نہیں کی, یہ صرف ایک کوڈ ڈالا ہے. انشاءاللہ یہ سارا کچھ